કંઈ કરવું હોય એ અહીં જ કરો. અને ખરેખર જે જ્ઞાનની ગંગા ચાલી આપણે બધાને પણ એમ થયું અને એ ભાવથી બોલાવતા કે જ્ઞાન ગંગામાં નાહને પ્રાણી થઈને ઝાકમ જોડ. હે તો એ ઝાકમ જોડ અવસ્થા, એ સદગુરુની અવસ્થા આપણે બતાવી અને એ કૃપાનો પ્રસાદ અત્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ. એ જ્ઞાન ગંગા રૂપી ગંગા જળની અંદર આજે આ જામનગર સ્થાનની અંદર આપણા પરમ પૂજ્ય મહંત સાહેબ પૂજ્યપાદ શ્રી જગદીશદાસજી સાહેબ તો એ ગંગાનું ક્ષીર, એ ગંગાનું નીર જે આપણે સદગુરુ સાહેબ પાસેથી પ્રાપ્ત થયું છે એની અંદર ઉત્તમ આ સત્સંગના અવસર રૂપી સાકર ભેળવી રહ્યા છે. એ પૂજ્યપાદ જગદીશદાસજી સાહેબ તેમજ પરમ ભગવતીય સરલાબેન અને આશ્રમના સમગ્ર ટ્રસ્ટીગણ એ સત્સંગ રૂપી સાકર એ જ્ઞાન ગંગાના જલમાં ભેળવી અને અહીં આપના પાસે પ્રસાદ માટે તૈયાર કરી છે. એ એમને જ્ઞાનામૃત કહો, ચરણામૃત કહો, જે પણ કહો. અને એની અંદર પણ એક વિશેષ વાત એ થઈ છે કે પૂજ્યપાદ પંચ શ્રી હજુર 1008 પરમ પૂજ્ય શ્રી મુકુંદમણી નામ સાહેબ અત્રે બિરાજી અને એ પ્રસાદની અંદર એમણે પોતાની હાજરી રૂપી પરવાનો ઉમેરી દીધો છે. સદગુરુના પ્યારા હંસજનોને આ સાહેબના પરવાના સાથેનું દલ પ્રસાદ, જ્ઞાન પ્રસાદથી વિશેષ બીજું શું હોઈ શકે? એનાથી બીજું વિશેષ મહત્વનું શું હોઈ શકે? અને ખરેખર આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા ઉત્તમ પ્રસંગે એ સદગુરુ સાહેબની યાદી આપણા જીવનમાં ભરી દે એમ એ દલ પ્રસાદ પરવાનાની સાથે સાથે આપણે જે પાન મળવું જોઈએ એ પાન રૂપી પુસ્તક પણ આપણી સાથે અહીં સાદર કરી દીધું છે. ધન્ય હો પૂજ્ય કમલા માઈને, એમના સર્વ પરિવારજનોને અને સાષ્ટાંગ વંદના હો પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી શ્રી જગદીશદાસજી સાહેબને કે આવી ઉત્તમ સમય એટલે કે આનંદ આરતી આપણા હૃદયની અંદર એ સદગુરુ સાહેબ પ્રત્યેની આર્ત ભાવના પ્રગટાવે એવી આરતી અહીં આપણા માટે એમણે સાદર કરી દીધી છે. હે અને એ આરતીની સાથે સાથે આપણે આ બધા સદગુરુનો કૃપા પ્રસાદ મેળવી અને પાવન થઈએ અને એ જ પાવન થઈ અને જીવનભર એ આપણા જીવનમાં ધારણ કરીએ એવા ઉત્તમ મોતી શબ્દામૃત આ જ્ઞાનામૃત વડે આ ગ્રંથને બદ્ધ બનાવી અને આપણા ચરણમાં સદગુરુ સાહેબની માળા મૂકી છે. હે અને એ માળા એટલે જ આપણે એ માળાનું સતત સ્મરણ કરતા રહીએ અને એ માળા દ્વારા આપણે એ સદગુરુ સાહેબે જે કહ્યું છે તે પરમ સત્ય સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીએ એવા ભાવ સાથે અહીં જે પણ આપે પ્રયત્ન દ્વારા આ સહજ સુલભ બનાવ્યું છે. ફરીવાર આપને કોટી કોટી વંદના સાથે આપ સર્વના ખૂબ ખૂબ ભાવ સાથે સદગુરુ સાહેબ આપણા જીવનમાં પણ આ જ માળાનું જે ભજન છે એ પ્રગટાવે અને એ ભજનના ભાવ સાથે આપણે સત્ય પુરુષને પૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને આપણા પર પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રી અને પૂજ્યપાદ અત્રે બિરાજતા આપણા આજના અતિથિ વિશેષ એવા પૂજ્ય શ્રી નિજાનંદ સંપ્રદાયના મહારાજશ્રીનો તેમજ અત્રે ઉપસ્થિત સર્વ સંત મહંતોનો આપણા પર પણ આશીર્વાદ વરસતો રહે એવી ભાવના સાથે વિરમું છું. ખૂબ પ્રેમથી એકવાર આપણે બધા સાથે મળીને સદગુરુ સાહેબના નામનો જય જયકાર કરીએ. બોલીએ સદગુરુ કબીર સાહેબ કી, પંત શ્રી ધણી ધર્મદાસજી સાહેબ કી, આચાર્ય શ્રી મુકુંદમણી નામ સાહેબ કી, आज के आनंद की, अपने अपने गुरु साहेब की. साहेब पाए लागी बंदगी साहेब. पूज्य स्वामी जी श्री राम स्वरूपदास जी ने सेवावृत्ति, परोपकार वगैरह गुणों ने याद करी, श्रद्धांजलि अर्पित करी. एमणे बहु सरस बात करी, वियोग विसराशे नहीं. खरेखर એ સંતનું વ્યક્તિત્વ એવું હતું કે એ કોઈ જે એમના પરિચયમાં આવે એ કોઈ એમને વિસરશે નહીં. જે કંઈ કરવું છે એ આ જન્મમાં જ અને આ યુગમાં જ કરવું છે એ એમનો ઉપદેશ હતો. સેન્ટ્રલ બેંકના ચીફ મેનેજર શ્રી મૈની સાહેબ, સેન્ટ્રલ બેંકના રિજિયોનલ મેનેજર શ્રી ભારતભૂષણ ભંડારીજી અને સેન્ટ્રલ બેંકના મેનેજર શ્રી અધિકારી સાહેબ પંત સાહેબને હારતોરા કર્યા. આભાર એમનો. શ્રી કિશોરદાસજી સ્વામીએ
જેમને મોરારી બાપુના જમણા હાથ કહીને એમના તરફ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી એવા મારા ગુરુદેવ ડીકેવી કોલેજના ગુજરાતીના નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપક, નિવૃત્ત હોવા છતાં પણ પ્રવૃત્ત એવા પૂજ્ય શ્રી લાભશંકરભાઈ પુરોહિતને હું બે શબ્દ કહેવા પ્રાર્થના કરું છું. પૂજ્ય શ્રી લાભશંકરભાઈ પુરોહિત. कबीर रामा नामा कबीर तुलसी नानको ज्ञान देव आलोक्यत्वं हरिवरजना वल्लभादि प्रशस्ता पीतं काव्यं हरिरस कवि ईश्वरस्य त्वयापि देहे स्थानं तव चरणयो द्वारिकानाथ 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 द्वारिकानाथ. આજના આ સ્મૃતિ પર્વના મૂર્ધન્ય સ્થાને બિરાજમાન પૂજ્ય મુકુંદમણી સાહેબ કબીર પરંપરાના આ સ્મૃતિ પર્વ સાથે અતિથિ વિશેષ ભાવે સંકળાયેલા અને પ્રણામી સંપ્રદાયની આદ્યપીઠ નવતનપુરી ધામના આચાર્ય પૂજ્ય શ્રી કૃષ્ણમણીજી મહારાજ શ્રી, અહીંની સ્થાનિક કબીર મંદિરના કબીર આશ્રમના મહાન શ્રી પૂજ્ય શ્રી જગદીશજી સાહેબ, કબીર પરંપરાની ભિન્ન ભિન્ન ગાદીઓના અધિપતિશ્રીઓ અને કબીર સાહેબે જે ચિરસ્થાયી અક્ષર વારસો આપ્યો, શબદ અને સાખી, એની સાથે જીવન સંબંધે સંકળાયેલા આપ સૌ સત્સંગી ભાઈઓ અને બહેનો, મને શાસ્ત્રી સાહેબની આજ્ઞા થઈ કે મારે કંઈક કહેવું, અને અહીંથી કિશોરદાસજી સાહેબે અને આશર સાહેબે પણ પૂજ્ય મોરારી બાપુના નામની સાથે મારા નામને સાંકળો. એટલે થોડીક મૂંઝવણ એ પ્રકારની કે હું કંઈ સંત મહંત તો છું નહીં, હું તો સામાન્ય જન છું. અને સાહેબ કૃપારસ કોષનો એક સરસ શ્લોક છે. અપ્ય પ્રિયે પ્રિયગિર પ્રિયકારકસ્ય ધાતા સસર્જ રસનામ ચ મનશ્ચ યસ્ય દ્રવ્યેણ ગુલ્ય મૃદુના વિગલન મલેન તસ્મૈ નમો હૃદયરંજન સજ્જનાય. સજ્જનને વંદન કર્યા છે. દેવને વંદન તો કરીએ છીએ, ઈશ્વરને વંદન કરીએ, આચાર્યોને વંદન કરીએ, પણ આ એક ગ્રંથમાં જૈન મુનિનો શાંતિચંદ્રજીનો ગ્રંથ છે, એણે સજ્જનને વંદન કર્યા. એટલે આપ સૌ સજ્જનને પણ વંદન. હવે મને શા માટે કહ્યું એ તો કંઈ મને બહુ ખ્યાલ નથી, પણ 2-3 વાત મને બ્રહ્મલીન મહંત સાહેબ શ્રી રામ સ્વરૂપદાસજીની જે સ્પર્શી ગઈ છે એ વાત આપની પાસે મૂકી અને 1 મિનિટ પછી આ સ્મૃતિ ગ્રંથમાં પ્રથમ પાને જ જે પદ મૂક્યું છે એની 2 પંક્તિ આશાવરીમાં ગાઈશ. કદાચ 1 વર્ષ થયું હશે સાહેબ કે અહીં એક મોટો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવેલો ને પ્રતિ સપ્તાહ રવિવારે બ્રહ્મલીન મહંત સાહેબની સ્મૃતિમાં એક વ્યાખ્યાન માળા યોજાઈ હતી. અખિલ ભારતીય કક્ષાના વિદ્વાનોને એમાં દર અઠવાડિયે રવિવારે બોલાવવામાં આવતા. આમાં એક અઠવાડિયે એક બહારના મહાનુભાવ જે નિમંત્રિત વક્તા હતા તે પધારી શક્યા નહીં,
એટલે શાસ્ત્રી સાહેબે મને આજ્ઞા કરી, ફોનિક આજ્ઞા કરી, ટેલિફોનિક આજ્ઞા, કે આ મહાનુભાવ પધાર્યા નથી ને જો આપ, તો મેં કહ્યું કોઈ નિમંત્રિત વક્તા તો નથી, આકસ્મિક વક્તા પણ નથી, પણ આપે આજ્ઞા કરી અને ખાસ કરીને જેમની સ્મૃતિમાં વ્યાખ્યાનમાળા યોજાઈ રહી એ રામ સ્વરૂપદાસજી સાહેબનો આમ જોઈએ તો બહુ સ્થૂળ અર્થમાં જોઈએ તો બહુ જ થોડો પરિચય, 2-4 વખત કંઈક મોરારી બાપુના કામ સંબંધે, સૂચના સંબંધે મળવાનું બનેલું, પણ એક બહુ માર્મિક પ્રસંગ જે મને સ્પર્શી ગયો તે કે જે દિવસે બ્રહ્મલીન થયા એને આગલે દિવસે સાંજે 5 વાગે મારે આપશ્રીને મળવા જવાનું બન્યું. આમ તો એમની એક પારદર્શિતા, આટલો મોટો અનુયાયી વર્ગ, આટલું મોટું સ્થાન અને આટલી મોટી સાધના હોવા છતાં સરળતા બહુ દુર્લભ વસ્તુ છે. ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવો એ કદાચ પ્રમાણમાં સરળ છે, પણ જનસમુદાયની વચ્ચે સરળ જલકમલવત રહેવું એ ઈશ્વરને રીઝવવા કરતાંય કઠણ છે. અને કબીર સાહેબની જે પરંપરામાં મને આ એક વસ્તુ સૌથી મોટી સ્પર્શી જતી હોય તો તે કે જેમણે સ્થાપિત પરંપરાઓ સામે વિદ્રોહ કરી અને જનસામાન્યમાં સાહેબને પ્રતિષ્ઠિત કર્યો. તો માન સાહેબ તો અત્યંત સરળ, એટલે મને કહ્યું કે એક પદ સંભળાવો. એટલે મેં કહ્યું કે સાહેબ આપનું સ્વાસ્થ્ય, આમાંથી ઘણા બધાને કદાચ આ અનુભવ હશે. મને એમ કહ્યું કે તમે બાપુ વતી મારા માથા ઉપર હાથ મૂકો. આ કોઈ કૃતજ્ઞતા નહોતી. ઘણી વખત મહાનુભાવો એક કૃતક આચાર પણ ઉભો કરે પ્રભાવ પાડવા માટે, પણ એની પારદર્શિતા, એની સરળતા અને એમનો ભાવ, અન્ય મહાનુભાવો માટેનો સદભાવ, મને બહુ સંકોચ થયો કે આ તો બહુ હું અપરાધ, મારે પક્ષે અપરાધ થયો ગણાય. આપના જેવા મહાપુરુષ, વયોવૃદ્ધ, તપોવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ, સ્થાનપતિ, અને તો કે નહીં મારા માથા ઉપર હાથ મૂકો છે તો નહીં, પણ હું એક પદ સંભળાવું એમ કરીને મેં કંઈક એને વિરહનું પદ સાંભળવું બહુ ગમતું. તો કોઈ વિરહનું પદ, સાયાજી મુને ખટકા કરે છે આહાંગરો, સાજણ ગયાની સુની શેરીએ ને મેળીએ, ધ્રુસકાનો ભીનો ધજાગરો, સાયાજી મુને ખટકા કરે છે આહાંગરો. બિલકુલ સૌરાષ્ટ્રી કાઠિયાવાડી શબ્દ છે આહાંગરો. એટલે સાહેબ સમજી ગયા પ્રાદેશિક ભાષાને, દેશી ભાષાને, સ્થળપદી ભાષાને એની પોતાની તાકાત હોય છે. એટલે જે અહાંગરો શબ્દ છે એને બહુ સ્પર્શી ગયો. એટલે જે બહેનોને તો ખબર હશે, આ કાઠિયાવાડમાં રહેનારી, એ નાનકડું છોકરું માંથી છૂટું પડે પછી બોલી તો શકે નહીં, એ હોહવાતું જાય. એને ચોકલેટ આપો, આ આપો, તે આપો, એને કશું નથી જોતું. ઈશ્વર પણ એમને નથી જોતો, એમને માં જોઈએ છે. એટલે એની પીડામાં એનો જે વિરહ, એમાં જે સોસવાતું જાય એને અહાંગરો કહેવાય. અને પછી એમણે પૂજ્ય બાપુને, મોરારી બાપુને કે મારા વંદન કહેજો, એકાદ પદ સંભળાયું. અવારનવાર પૂર્વે પણ મળવાનું બનતું, પણ એમની જે સરળતા, એકાદ વખત કંઈક કબીર પરિસંવાદ વિશે પણ મારે એમને મળવાનું બનેલું, ત્યારે એમની જે સાલસતા, સમર્પણ હોસ્પિટલ ઊભી કરતી વખતે એમનો જે તપમય પુરુષાર્થ, નકરો પુરુષાર્થ નહીં, નકરો પુરુષાર્થ તો આપણે સૌ વ્યવહારમાં કરતા જોઈએ, છૈયા છોકરાને ધંધે થાપે લગાડવા, 5 પૈસા કમાવા માટે, આ બધો પુરુષાર્થ આપણો સતત ચાલતું જ હોય છે. એક સરસ વાત છે તપ અને તાપ વચ્ચેની. તપની વચ્ચે એક લીટી મૂકી દો એટલે તાપ થઈ જાય, અને લીટી કાઢી નાખો એટલે તપ થઈ જાય. આપણી જાત માટે આપણે જેટલું સહન કરીએ એનું નામ તાપ, પણ બીજાને માટે, લોક કલ્યાણને માટે માણસ જ્યારે સહન કરે ત્યારે એનું નામ તપ. તો આવું તપ, આવા એક તપસ્વી પુરુષે સમર્પણ, એક અકિંચન સાધુ, એમની પોતાની પર્સનલ લાઈફ, એમની પોતાનો અંગત જીવન વ્યવહાર, ઓછામાં ઓછી જરૂરતો, બીજાને કશાય ભારરૂપ બન્યા વગર જીવવાની. નહીતર તો એક આવડી મોટી ગાદીના અધિપતિ અને સેવકો તો કરે કેમ કરવા તૈયાર હોય, કેવું પણ ના પડે, માત્ર આંખનો ઇશારો, અમે તો આ બધાથી પર છીએ અને જો ને પણ સેવકોનો આગ્રહ એટલે ક્યાં જઈએ, એમ કરીને બધા ભોગો ભોગવનારા મહાનુભાવોની પણ આપણે ત્યાં પુષ્કળતા છે.
એની વચ્ચે આ એક મહાનુભાવ, આવા એક તપસ્વી પુરુષ, પાઈએ પાઈનો એકે એક રૂપિયાનો ઝીણવટભેરો હિસાબ રાખી પોતાના અંગત ઉપભોગ માટે, સાર્વજનિક હેતુ માટે આવેલી એક રાતી પૈ પણ ન વપરાય, એની જે સતત કાળજી, એ કબીરની દેણકી, આ કબીર સાહેબની દેણકી છે. આંતરબાહ્ય જીવન વચ્ચે કશોય ફરક નહીં. આ એક મને બ્રહ્મલીન મહંત સાહેબના જીવનમાં. બીજી એની પ્રાંજલતા, જ્યારે મળે ત્યારે એટલા બધા, ખાસ કરીને છેલ્લા દિવસોમાં એટલા વિરહ વ્યાકુળ, એટલી બધી આતુરતા, અને એ બધાની વચ્ચે આ સમર્પણ હોસ્પિટલ એ થતું હતું ત્યારે એ પોતે વારંવાર કહે કે આ એક હોસ્પિટલ પૂરી થઈ જાય મારા જીવનકાળ દરમિયાન. એ માટે એણે જે પરિશ્રમ સરલાબેનને સાથે લઈને વિદેશોમાં, તો અને પૂજ્ય મોરારી બાપુને પણ જે મહાનુભાવો માટે, જે સંતો માટે અત્યંત આદરભાવ, એમાંના એક શ્રી રામ સ્વરૂપદાસજી હતા. તો આવા એક એને કોઈ સંપ્રદાયમાં બંધ કરવા, આ સમર્પણ હોસ્પિટલ એ જ મોટું સમર્પણ છે. સંપ્રદાય મુક્ત છે, સંપ્રદાયની બહારના જગતને એક મોટું સમર્પણ છે. એટલે કોઈ નિશ્ચિત એક ચોક્કસ કે એક સંપ્રદાયની ધારા સાથે સંકળાયેલા હતા, ઔપચારિક રીતે, વિધિવત રીતે, પણ એમણે પોતાની જાતને કદી એક નિશ્ચિત કે સીમિત સંપ્રદાયની અંદર બાંધી નહોતી રાખી. એટલે અન્નક્ષેત્રો, સમર્પણ હોસ્પિટલ, એ હોસ્પિટલને વિસ્તારવી, એમાં વિવિધ સગવડો ઊભી કરવી, એ માટેની એની સતત ચિંતા અને કાળજી, આ એક સૌથી મોટું સ્મારક, કાયમી સ્મારક. આપણે તો આ સ્મૃતિ પર્વ વર્ષમાં કદાચ 2-4 દિવસ ઉજવીને પછી પૂરું થઈ જતું હોય, પણ ત્યાં જનારા અનેકાનેક દર્દીઓ એ સાજા થઈને જેને સંભાળતા હશે એ બ્રહ્મલીન રામ સ્વરૂપદાસજીનો, રામનું, સ્વરૂપનું અને દાસનું, ત્રણેયનું. રામમય તો હતા જ, રામનું નામ, અને રામના સ્વરૂપને જે સમજે, એના ભીતરના સ્વરૂપને જે સમજે, તે રામ સ્વરૂપ, પણ એ રામ સ્વરૂપ પણ નહીં, એના દાસ. દાસત્વ એ બહુ દુર્લભ છે. સામર્થ્ય હોય છતાં બીજાનું દાસત્વ સ્વીકારવું, કશું ન હોય ને બીજાના લોલે લોલ દાસ થઈ જઈએ તો જુદી વાત છે, વખાના માર્યા. પણ સામર્થ્ય હોય અને છતાં દાસત્વનો ભાવ અનુભવવો, એક વિરલ સિદ્ધિ બ્રહ્મલીન મહંત સાહેબના જીવનમાં મને દેખાડ્યું. આવા એક પ્રતાપી, અત્યંત તપસ્વી, સેવાપરાયણ અને 500-600 વર્ષથી કબીર સાહેબની કથની અને કરણીની એકતા, એનું શુદ્ધાદ્વૈત રચી આપનારી જે પરંપરા, એના એક તેજસ્વી મહાનુભાવ આ ધરતીમાં, આ જામનગરની ધરતીમાં વિચરા, વિસ્તરા અને વિકસા, એ માટે પણ આપણે સૌ ધન્ય ધન્ય છીએ. મેં કહ્યું, મારે તો કંઈ અહીંયા આવ્યો ત્યારે કંઈ એવું મારા મનમાં ખ્યાલ નહોતો. હું તો એક શ્રોતાજન તરીકે આવેલો. શાસ્ત્રી સાહેબનો તો ઘણો જૂનો પરિચય કાશી દરમિયાનનો, તો એમણે આજ્ઞા કરી, તો મેં આ 2 શબ્દો હું બ્રહ્મલીન મહાન શ્રી પૂજ્ય શ્રી રામ સ્વરૂપદાસજીને પૂજ્ય મોરારી બાપુ વતી પણ વંદન કરી અને મારા શબ્દોને વિરામ આપું. અને એ સાથે અહીં જે પ્રાર્થના આ પુસ્તકમાં પહેલા જ પાને લખેલી છે, એની 4 પંક્તિઓ. ઉર પ્રગટો આજ કબીર મેરે ઉર પ્રગટો આજ કબીર પ્રગટો પ્રગટો આજ કબીર મેરે ઉર પ્રગટો આજ કબીર बहुत दिनन से राह देखत में बहुत दिनन से राह देखत में अब मन होत अधेर मेरे उरे प्रगटो आज कबीर अब मन होत अधेर मेरे उरे प्रगटो आज कबीर अजर अमर अविनाशी प्रभु तुम
अजर अमर अविनाशे प्रभु तुम अजरा अमर गंभीर सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर केवल ब्रह्म कबीर मेरे उर प्रगटो आज कबीर मेरे उर केवल ब्रह्म कबीर केवल ब्रह्म कबीर मेरे उर प्रगटो आज कबीर अब मन होत अधेर मेरे उर प्रगटो आज कबीर मेरे धन्यवाद મને આ શબ્દાંજલિ આપવાનો યોગ શાસ્ત્રી સાહેબની ઉદારતાને કારણે મને તો સોણુંય નહોતું એમ સપનામાંય ખ્યાલ નહોતો આપણે આજ્ઞા કરી તો આપને પણ વંદન અને આપ સૌએ મને સહન કર્યો એ માટે આપને સૌને વંદન ખૂબ આભાર પુરોહિત સાહેબ આપે વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું કે હું કંઈ સંત નથી પણ ગુરુદેવ કબીર સાહેબે સંતનો વ્યાપક અર્થ કર્યો છે સંત એટલે સજ્જન અને એ વ્યાખ્યામાં આપ આવો છો શાબુદ્દીનભાઈ ઘણીવાર કહે છે કે હું કાંઈ નથી જાણતો એમ કહેવા માટે ઘણું જાણવું પડે છે આપે ઘણું જાણ્યું છે માટે આપ કહો છો કે હું કંઈ નથી જાણતો આપની વાણી અને આપના વિચારોએ એ સાબિત કરી આપ્યું છે કે આપ શું જાણો છો આપે તપ અને ત્યાગ તપ અને તાપનો બહુ સુંદર અર્થ કરી સ્વામી શ્રી રામસ્વરૂપદાસજીના જીવન સાથે એને વણી લીધો અને મૌલિક અંજલિ અર્પિત કરી એ બદલ આપનો આભાર હવેના વક્તા મહંત શ્રી અર્જુનદાસજી સાહેબ શ્રી કબીર આશ્રમ બેંગ્લોર પોતાનું ઉદ્બોધન કરશે મહંત શ્રી અર્જુનદાસજી સાહેબ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરઃ ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ અખંડમંડલાકારં વ્યાપ્तं येन ચરાચરં તત્પદં દર્શિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाद्य श्री सदगुरु कबीर साहेब को वंदन करते हुए और यहाँ विराजमान परम पूज्य पंथ श्री हुजूर मुकुंदमणि नाम साहेब को वंदन करते हुए और कृष्णमणि नाम साहेब, जगदीश दास साहेब और श्रीमती सरला बहन और अन्य महंतगण यहाँ पधारे हुए हैं और भक्तजन हैं, माता ये है, बहनें हैं, भाइयाँ हैं, सब लोगों को वंदन करते हुए मैं एक चार बातें करता हूँ। कहा जाता है कि पाश्चात्य लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो तो निराशावादी है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो वैराग्य जो है विराग, तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। माने जो त्याग है, जो वैराग्य है, माने संसार को छोड़कर उदास हो जाना है, उसके प्रति बहुत जोर दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। और हम संसार में देखते हैं कि दो तरह के व्यक्ति, एक तो आशावादी होते हैं और एक तो निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। और जो पेसिमिस्टिक होते हैं संसार में कुछ कर नहीं पाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, सिगमंड फ्राइड भी यही कहता है कि जो निराशावादी है तो वो निराश होकर ही संसार से लौटता है, जो आशावादी है वो कुछ करके संसार में जाता है, वो आनंद मग्न होकर जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे बाबा जी जो राम स्वरूप साहेब थे वो तो पूरे आशावादी थे। मैं समझता हूं कि आप सब लोग मुझसे सहमत हैं कि वो पूरे आशावादी थे, क्योंकि उन्होंने संसार में
जो कर्म करने का तरीका है उसको दिखा कर गए हैं, उसका नमूना हमारे सामने खड़ा करके गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए और हम उस मंजिल तक कैसे पहुंच पा सकते हैं, इसको उन्होंने अपने जीवन में दिखा के गए हैं कि जो कोई भी चाहे उसको हम उठा ले सकते हैं। उनमें तो सब गुण मौजूद थे। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगस्य कर्मसु कौशलम, माने कर्म तो सब जीव करते हैं, तो कर्म के द्वारा ही उसके फल भोगने हम सब लोग इस संसार में आए हैं और हमारे कर्म को भोगने अन्य लोक में भी जाते हैं, ऐसे कहावत है। पर तो यहाँ कैसे कर्म करना चाहिए, तो योगी होकर कर्म करना चाहिए। तो योग का मतलब क्या है, तो कहते हैं कुशलता पूर्वक ऐसे कर्म करें कि संसार में सबको सुख पहुँचे। तो हमारा जीवन ये जो है, ये जीवन एक आदर्श बने कि लोग हमारे पीछे आए। कबीर साहब कहते हैं कि जब तू पैदा हुआ, माने जब तू जन्म लिया, तुमने रोते रोते जन्म लिया, और जब तुम रोते थे और दुनिया हंसती थी, खुशियां मनाती थी और मिठाइयां बांटती थी तुम्हारे जन्म दिनोत्सव पर तुम ऐसी करनी कर चलो, क्या करे, तुम हंसे जग रोए, और तुम हंसते हंसते संसार में जाना और दुनिया सब तुम्हारी याद करते करते रोना, तुम्हारे आदर्शों पर, तो तुम्हारे कर्म पर, तुम्हारी जो ज्ञान है, तुम्हारा जो आचरण है, उस पर वो लोग तुम्हारी याद करते रहे और तुम्हारा पीछा करते रहे। ये बात हमारे महंत श्री रामस्वरूप साहिब से अक्सर लागू होती है। तो मैं कहने जा रहा हूँ कि वो बेंगलोर आए थे एक बार, 1966 में आए थे। उनके साथ में छगनलाल जी साहब थे। छगनलाल जी आजकल वे और उनके पुत्र सब इंग्लैंड में रहते हैं। तो वह ये हमारा आश्रम तो बहुत छोटा सा था, तो शायद साहब को मालूम था या नहीं, पर वो तो ढूंढते ढूंढते आश्रम पर आ गए। तो आ गए तो हम सब लोगों से उनकी भेंट हुई। तो हर दिन वो इतने सरल थे, बच्चों जैसा थे, बच्चों जैसा सबसे हिलते मिलते थे, सरलता उनमें अपने आप बैठ गई थी। वो सहज भाव से सब लोगों से मिलते थे और सत्संग में भाग लेते थे। करीब वो 1 महीने तक बेंगलोर में रहे, क्योंकि छगनलाल जी का कोई कारखाने के उद्घाटन के लिए साहब आए थे। तो उस उद्घाटन में कुछ समय लगता था, तो वो वहीं रहे। तो उनके मकान में हर दिन शाम को आश्रम में वो आया करते थे। छगनलाल जी, उनके परिवार और उनके मित्र सब लोग आया करते थे। तो हम लोग भी वहाँ मिलते थे, तो सत्संग में भाग लेते थे, भजन और सत्संग में, और बड़े खुश हो जाते थे और सबसे बातचीत करते थे, सबसे पूछताछ करते थे कि कौन हो, कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, पढ़ते हो, क्या लिखते हो, या कुछ काम करते हो। ऐसे मैं तो बहुत छोटा लड़का था उस समय, फिर भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके साथ मैंने वो दिन जो बिताए। तो बाद में ऐसा हुआ कि हमारे आश्रम का जो हॉल था तो वो बन रहा था। तो आप जानते हैं, तो हमारा तो गरीब देश है, अभी अभी तो संपन्नता आ रही है। तो उस समय तो पैसों की तो बिल्कुल कमी तो रहती है, और साथ साथ में सीमेंट की जो बिल्कुल कमी थी। और सरकार ने रेशन द्वारा, माने कभी 6 महीने में, 5 महीने में एक आध कई बोरे सीमेंट दिया करती थी। तो उसका तो कूपन होता था, तो वो कूपन को हमें रजिस्ट्री करना पड़ता था। तो पहले प्लान वगैरह बना के रजिस्ट्री करना, तो बाद में वो थोड़े थोड़े वो सीमेंट देते थे। जैसा जैसा सीमेंट मिलता था वैसे काम चालू रखते थे हम। तो हाल तो बन गया था, तो कई दिनों से हाल रुक गया था समझिए। तो बाद में किसी तरह प्रयत्न करके हमारे भक्तजनों ने उसका जो छत वगैरह लगवा दिया। तो बाद में वो नीचे जो फर्श था उसको सीमेंट चाहिए था।
तो बाद में साहब ने देखा कि क्यों ये रुक गया है, तो हमने बताया कि साहब सीमेंट नहीं मिल रही, सीमेंट की बहुत कमी है, आप तो जानते हैं वो कई दुकान में तो नहीं मिलते हैं आजकल जैसे मिलता है, तो वो तो सरकार और रेशन के द्वारा वो सीमेंट बेचा करती है, वो कभी 6 महीने में एक आध 20 बोरे 30 बोरे ऐसे देते हैं, तो इससे तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तो ठीक बात है। तो उन्होंने सुन लिया और चुप रह गए। तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि साहब ये आपकी कृपा हो तो ये सीमेंट आप कहीं से आप दिलवा दीजिए। देखो ये तो हमारे मेहमान थे, साहब रामस्वरूप दास जी तो हमारे मेहमान थे, पर क्या करें, हमें तो लाचार था सीमेंट की। तो मैंने ही खुद साहब से कहा, तो उन्होंने तुरंत सोचा अच्छा ये तो कबीर मंदिर है, कबीर की सेवा होनी चाहिए। तो उन्होंने बोले कि आप छगनलाल से बातचीत कीजिए, मैं उनसे बातचीत करूंगा बाद में। तो ठीक है, मैंने छगनलाल साहब से गया, तो वहीं बाजू में बैठे थे। तो बाद में सत्संग प्रवचन होने के बाद में तो एक कमरे में बैठे रहे। तो बाद में मैंने कहा उनसे अंग्रेज में, सर वी बैडली इन नीड ऑफ सीमेंट, विल यू प्लीज हेल्प अस to finish this hall at least, so that people who will assemble here whenever they come for prayer, really they will remember you, and Sadguru Kabir will definitely give you thousands of bag for this kind help, because it is for the good cause. We request you to supply us or to give us some cement. ऐसे हमने कहा। तो वो कुछ बोले नहीं छगनलाल जी, तो वो चुप रहे। अच्छा 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 ऐसा बोल दिए वो। तो बाद में दूसरे दिन आए, शायद रामस्वरूप दास साहेब ने उनसे बोला होगा, तो तुरंत उन्होंने दूसरे दिन कहा हाउ मेनी बैग्स डू यू नीड, माने कितने बोरे तुमको चाहिए। तो हाल के लिए हमने पूछा, करीब 50 बोरे की ज़रूरत थी उस समय। तो 50 बोरे, आजकल 100 बोरे 200 300 तो मिल जाते हैं, पर उस समय 50 बोरे क्या 10 बोरे भी नहीं मिलते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा आई विल गिव ए लेटर, यू प्लीज़ गो एंड टेक इट, मैंने मैं चिट्ठी देता हूँ, हमारी फैक्ट्री जो बन रही है तो उस फैक्ट्री से आप उन बोरों को लेते आइए और अपना काम पूरा कीजिए। तो बाद में हमने गए, तो बाद में हमने गाड़ी ले गए, तो 50 बोरे ले आए और अपना हाल भी कंप्लीट कर दिया। तो साहेब तो देखे रामस्वरूप दास तो बहुत खुश हो गए। तो बाद में भी छगनलाल जी और उनका परिवार हर साल जब हम वार्षिकोत्सव मनाते हैं कबीर साहब की आराधना, तो उनको तो हम निमंत्रण देते थे, वो आया करते थे और सत्संग में भाग लेते थे। तो इस प्रकार तो जैसे कहा जाता है, वृक्ष न फल बके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। माने तो वृक्ष फल को खाते नहीं है और नदी तो अपना पानी दूसरों के लिए रखती है, वो खुद पीता नहीं है। ऐसे ही परमार्थ के कारण, भलाई के कारण जो भगवान की सेवा के लिए साधु लोग अपना शरीर धारण करते हैं, ये बात अक्षर 100% हमारे रामस्वरूप साहेब से उतरती है। तो ईसा ने कहा है कि आप, किसी ने पूछा उनसे कि साहेब हम भगवान के देश को जाना है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, तो उस बच्चे को उठा लिया, तो कहा कि आप बच्चे बन जाओ। जैसे बच्चे वो मुग्ध स्वभाव के हो जाते हैं, वैसे आप भी मुग्ध हो जाओ, तो चलो आप भगवान के राज्य में पहुँच जाते हैं। तो हमारे रामस्वरूप दास जी ऐसे ही सरल थे, मुग्ध स्वभाव के थे, बच्चों जैसा मन वाले थे, तो उनमें माया बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए वो अपने कार्य में सफल रहे। मैं यही कहता हूँ, आज के दिन हम सब लोगों को यही प्रतिज्ञा करनी चाहिए और प्रतिज्ञा के साथ साथ भरसक प्रयत्न भी करना चाहिए अपने ज़िंदगी में। जो उन्होंने मंजिल को प्राप्त की, उसमें कम से कम 1/100 भाग 100 माने रुपये में 1 पैसा भी अगर हमें हासिल करना चाहिए, तो हमें उस सरलता को अपनाना चाहिए।
उन बच्चों जैसा जो भावना है उसको अपनाना चाहिए, अपना अहंकार को त्यागना चाहिए। जहाँ अहंकार होता है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों हम पीछे रह जाते हैं? तो एक अहंकार है जो हम अच्छी तरह कर्म करने में तो हमें अड़चन पड़ती है, तो वह करने नहीं देता है। और रामस्वरूप साहेब जी, बापू जी तो इतने आगे चले गए, तो उनके पीछे हमें जाना है तो हमें भी वही सरलता और वही वो कर्म की जो कुशलता है उसी को अपनाना चाहिए। और देश विदेश में उन्होंने जो कबीर का ज्ञान फैलाया, उस ज्ञान के दिए को जलाना चाहिए। ज्ञान का जो दिया है तो वो दिए को, जो उस उजाले को, उस प्रकाश को तो फैलाना चाहिए। हमारे भारत में और अन्य भागों में भी सब जगह फैलाना चाहिए। तो पहले अपने अंदर में प्रकाश करना चाहिए। वो हमेशा ध्यान पर बैठते थे हमारे आश्रम में, कुछ घंटों के लिए सवेरे और शाम को जब आते बैठ जाते ध्यान में, तो अपने दिए को जलाना। तो यही हमें वे ऐसे उदाहरण देते हैं कि अपने आप को पहले जलाओ। अपने दिया जो खुद जलता है और दूसरों को जो उजाला देता है, ऐसे अपने आप में जो प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश, उसको प्रकाश कर लो, आत्म प्रकाश, और सारे संसार में फैलाते जाओ। और संसार में आए हो तो कुछ करके दिखाते जाओ। यही बात कहते हुए मैं आज ये जो अवसर मुझे दिया गया है, इसका मैं कृतज्ञतापूर्वक वंदन करते हुए आप लोगों से मेरे जो प्रवचन को बंद करता हूँ। बोलिए कबीर साहेब की। આભાર અર્જુનદાસજી સાહેબ. આપે બહુ સુંદર રીતે રામ સ્વરૂપદાસજીના જીવનની વાત કરી. જબ તુમ આયો જગત મેં, જગ હંસે તુમ રોય, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोय. પૂજ્ય શ્રી બાપુએ આ જાતનું જીવન જીવ્યા. આશા ही जीवन है, निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है. એમના જીવન ઉપરથી આપે આ ફલિત કર્યું. ગીતા કહે છે યોગ કર્મશુ કૌશલમ. બાપુએ કાર્ય તો કર્યું પણ એ કર્મયોગીની જેમ કુશળતાપૂર્વક કામ કર્યું. બચ્ચों से सरलता उनमें थी, એ વાત એમની વિનમ્રતા સાબિત કરે છે. परमार्थની આપે વાત કરી. माया से पर रह करके उन्होंने कार्य किया. बदबू में कमल जन्म लेता है मगर उस बदबू से दूर रहता है जल. जल कमलवत जीवन बापू ने जिया, ये बात आपे करी. अहंकार रहित भावना ये बापूना जीवनનો मुख्य मंत्र હતો. जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है तो हम नहीं. प्रेम गली अति संकरी, जा में दो न समाई. આ વાત એમણે પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરી. છેલ્લી વાત એમણે કરી અપના દિયા જલાવ. આત્મજ્ઞાન એ જ મોક્ષનો ઉત્તમ માર્ગ છે. બાપુએ એમના જીવનમાંથી આપણે પ્રેરણા આપી. હવે કબીર પંથના આજના કાર્યક્રમમાં જેમણે ધ્વજારોહણ કરેલ છે એવા શ્રી 5 નવતનપુરી ધામ ખીજડા મંદિરના પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી કૃષ્ણમણીજી મહારાજનું સન્માન કરવામાં આવશે. આજના મુખ્ય યજમાન શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ શાલ ઓઢાડીને પૂજ્ય કૃષ્ણમણીજી મહારાજનું અભિવાદન કરી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે આપણને સૌને આશીર્વચન આપી ધન્યતાનો અનુભવ કરાવશે પંથ શ્રી હજુર મુકુંદમણી નામ મહારાજ સાહેબ.
यदीयपादोदकशेषनेन स्थाणुप्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यस्सतां यो महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं बन्नो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत नशाय। परमादरणीय विद्वान मंडल, महंत साहिबों, सदगुरु के परम प्रेमी भक्त हंसजन, भक्तिमती माताओं, हम आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ हम यहाँ पर विराजमान हैं और महाकर्म योगी युग पुरुष महंत श्री रामस्वरूप दास जी साहेब की स्मृति करने के लिए हम यहाँ पर बैठे। राम स्वरूप स्मृति। जो कोई व्यक्ति राम के स्वरूप का संस्मरण करता है, जो कोई भी व्यक्ति स्मरण करने के लिए, अपने मन को रमाने के लिए, अपने मन को विश्राम दिलाने के लिए कदाचित राम का स्मरण करे तो मन को विश्रांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। इसलिए यदि स्मरण ही करना है तो राम स्वरूप, राम के स्वरूप का ही स्मरण करो। अपने मन के साथ राम को ही जोड़ो। राम के अतिरिक्त कदाचित तुम्हारा मन दूसरे को पकड़ेगा तो अशांति रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देखें, क्या हमारा मन 24 घंटे में कोई ऐसा समय आता है जबकि हमारा मन राम को पकड़े, राम में विश्राम करे? ऐसा कोई टाइम आता हो और आता है तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई है। तो सोचिए, जितने बैठे हो सभी तो गुरु से जुड़े हुए हो। गुरु से जुड़ करके जब भजन में बैठते हो तो क्या तुम्हारा मन राम को पकड़ता है कि और किसी को पकड़ता है? आप भजन में बैठते हैं, चित्तवृत्ति को निरुद्ध करते हैं, रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, पर मन रुकतो कि रुके छे, भागे छे। ये तुम्हारी बात नहीं है, ये तो कृष्ण भगवान के शिष्यों अर्जुन भी कहता है, मेरा मन बड़ा चंचल है, चंचलम भी मन कृष्णो प्रमाथी बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। अर्जुन अपने हृदय की बात को बिल्कुल साफ साफ रख देता है। जब कोई वस्तु, हृदय की वस्तु, हृदय में उत्पन्न होने वाले विकारों को जब गुरु के सामने विनम्रता पूर्वक निवेदन कर देता है तो कोई न कोई समाधान निकलता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, मन को रोकने के लिए मैं लाचार हूँ,
बहुत लाचार हूँ। मैं लाचार हूँ, मैं दूसरे के मन की बात को नहीं जानता, पर मैंने जो आज तक सुना है आपके परम पावन पवित्र मुख से, तो मैं अपने मन पर काबू करने में समर्थ नहीं हूँ। मेरी बात हर व्यक्ति को चाहिए, उधारी बात मत किया करो। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है कि नहीं? तुम्हारा मन ईमानदारी के साथ है कि नहीं? तुम्हारा मन भगवान के चिंतन में लगता है कि नहीं? किस समय, जिस समय आप भजन करने के लिए बैठते हो, उस समय देखो कि हमारे मन की गति क्या है, हमारे मन की विधि क्या है, हमारा मन किधर जा रहा है, हमारा मन किस तरफ जा रहा है। उस काल में मन की गति और विधि को समझो। समझने के बाद जितना तुमको समाधान मिलता है, जितनी शांति मिलती है, उस शांति को नोट करो। आज मुझे इतनी शांति मिली, आज मैं अपने मन की तरफ से इतनी सफलता प्राप्त की, तो मन तुम्हारा है। मन के साथ फाइटिंग करनी है, मन के साथ लड़ाई करनी है, मन का निग्रह करना है, तब सच्चे योगी बन सकोगे। योगः कर्मसु कौशलम, आपने सुना था, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना, चित्त के स्वभाव को रोकना। तो रोकता है कि नहीं? बोलो, जितने बैठे हो, माई हो, दाई हो, कोई भी हो, यदि तुम्हारा मन भजन के टाइम में, और समय की बात नहीं है, भजन के टाइम में मन रुकता है कि नहीं? जिस लिए तुम बैठे हो वो काम मन कर रहा है कि नहीं? यदि नहीं करता है तो क्या करता है? कुछ ना कुछ काम करेगा वो। बिना काम किए मन मान सकता? हमेशा कोई न कोई चिंतन, कोई न कोई मनन, यदि संसार का मनन करता है तो कोई बुरा नहीं है। कहीं परमार्थ के लिए जाता है तो कोई बुरा नहीं है। गरीब की सेवा के लिए जाता है, कोई बुरा नहीं है। दर्दियों की सेवा के लिए जाता है, कोई बुरा नहीं है। हॉस्पिटल निर्माण के लिए जाता है तो कोई बुरा नहीं है। समाज की सेवा के लिए जाता है तो कोई बुरा, और संत सेवा में जाता है तो कोई बुरा नहीं, और सत्संग में जाता है तो कोई बुरा। अच्छे काम के लिए कदाचित तुम्हारा मन जाता है तो उसको जाने दो और उससे एक सफलता प्राप्त करो। क्या मेरा मन समाज की सेवा के लिए जा करके कर्मठता पूर्वक समाज की सेवा करता है या नहीं करता है? यदि करता है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए मन के साथ आपका तन है। पूज्य बापू जी का जीवन इसी में व्यतीत हुआ। हमेशा एक बार कहते हैं, मैंने कहा साहब आप जब ध्यान में बैठते हो तो क्या देखते हो? पर मेरी स्थिति को मत बोलो, मैं क्या देखता हूँ। नहीं तो भी बताओ, तब ना पता लगेगा कि आप क्या देखते हो। कहते मैं वो देखता हूँ जहाँ पर गरीबों को आराम मिले, दर्दियों को आराम मिले, संतों को आराम मिले, भक्तों को आराम मिले, मैं वो देखता हूँ। और वो देख करके मेरे दिल में ये होता है, हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाए तो जो दर्दी रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाए। ये मैं देखता हूँ। और देखते देखते वह देखता हूँ जो मुझे देखना चाहिए। अंत में मैं वो देखता हूँ जो मुझे देखना चाहिए। समाज की सेवा को देखने के बाद मैं उसको देखता हूँ जो साक्षात मेरा ही रूप है। उस परमात्मा को देखता हूँ जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया। और सारी सृष्टि को निर्माण करने के बाद उन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया। इसमें कोई दुखी है, कोई असंतुष्ट है, कोई कई प्रकार के लोग हैं। मैं ये देखता हूँ। इसलिए उनका जीवन समाज के लिए था। वो बड़े परमार्थी थे, परोपकारी थे, सबके साथ जुड़े हुए थे और सबके साथ एक ऐसा व्यवहार करते थे, उनका व्यवहार सबको पसंद आता था। बच्चे के साथ मिल जाना, बूढ़े के साथ मिल जाना, संत के साथ मिल जाना, और जो भी उनको मिलता था उसका सदुपयोग करना उनके जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य था। आज वो महापुरुष हमारे साथ नहीं हैं, पर उनका जीवन तो है। उनका जीवन चरित्र, उनकी सेवा
उनका सौहार्द, उनका सरल जीवन, उनका सात्विक जीवन, उनका भजन, उनका ध्यान, उनका सुमरण, उनकी जीवनचर्या हमारे जीवन के साथ है। हम उस जीवनचर्या को कदाचित अपने साथ जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा हम राम स्वरूप के परम भक्त हैं और उनका जीवन हमारे जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहे, हम यही चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को चाहिए हम अपने अग्रगण्य जो पीछे महापुरुष हो चुके हैं उनके जीवन के साथ अपने जीवन को जोड़ें। यदि अपने जीवन को जोड़ेंगे तो जो उनमें आदर्श था, जो उनमें सेवा भक्ति थी, जो उनमें सरलता थी, जो उनमें परोपकार की भावना थी, वह परोपकार की पूरी भावना हमारे जीवन के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ेगी ही। इसलिए गुणों का संचार होना बड़ा जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा है। मनुष्य को समझाया उन्होंने। मालूम होता है जब कभी वो प्रवचन करते थे इसी प्रकार समाज बैठा रहता था, जैसे आप बैठे हो, माताएं बैठी हैं। इसलिए उन्होंने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरे गुणों की बड़ाई है, तेरे गुणों का बड़प्पन है। और यदि गुण नहीं है तो तुम सोच लो कि तुम क्या हो। गुण नहीं है तो पशु से गए बीते हो। पर पशु का जीवन भी उपयोगी होता है। गाय का जीवन बड़ा उपयोगी है, बैल का जीवन उपयोगी है। और ये नहीं कि पशु का जीवन निकम्मा है। तो हमारा जीवन गुणों से महान बनता है। तो साहेब के जीवन में गुणों की महानता थी और उन गुणों की बदौलत वो 35 राष्ट्रों में घूमे और वहाँ से जो मिला आश्रम में लगाया, संत सेवा में लगाया, हॉस्पिटल में लगाया, गौ सेवा में लगाया। और इतना ही नहीं, काशी में जब पहुँचे गुरु महाराज पूज्यपाद महंत श्री शांतिदास जी साहब, उन्होंने कहा सबके मठ हैं, सब लोग आराम से रहते हैं, सेवा करते हैं। मैं सोचता हूँ मेरा भी एक मठ हो, पर मेरे पास संपत्ति नहीं है। उन्होंने स्मरण किया मेरा शिष्य राम स्वरूप है और कदाचित वो ला के कुछ दे तो यहाँ मैं एक आश्रम का निर्माण करूँ। तो उन्होंने आश्रम खरीदा, आश्रम जिसका नाम कबीर कीर्ति, काशी नगरी में। वहाँ पर बहुत सुंदर कबीर कीर्ति मंदिर है। वहाँ पर जो भी भक्त जाता है उसकी सेवा होती है। संत जाए, भक्त जाए, साधु जाए, कोई भी जाए, नेता जाए, अमुक जाए, वहाँ सेवा होती है। तो जहाँ तहाँ उन्होंने आश्रमों का भी निर्माण किया। और उसके साथ साथ काशी जैसी परम पावन पवित्र नगरी में एक लहर तारा भी है। लहर तारा जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कमल पत्र पर प्रकट होकर के सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। लहर तारा से संदेश दिया। आदौ फुल्ल कुशेशय प्रविलसत कासार मध्य भवत काश्याम शैशव रूपिणोतरणम श्रीमत् कबीरस्य वै लीला मानुष विग्रहस्य नयनम नीरुनिमाभ्याम कृतम रामानंद मनस्विना पुनरभूत शिष्यत्वमस्य प्रभो। उस लहर तारा में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए और प्रकट होकर के मानव मात्र को संदेश दिया। उनके हृदय में मानव मात्र के प्रति सम्मान था, मानव मात्र का उन्होंने आदर किया और सत्य अहिंसा का वहीं से उन्होंने पाठ पढ़ाया। और वो पाठ भारत के कोने कोने में गया और अब तो सारे विश्व में पहुंच रहा है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश, उसी संदेश को लेकर के पूज्यपाद राम स्वरूप साहब देश देश में पहुँचे और सत्य नाम का कीर्तन कराया। और सत्य नाम का कीर्तन कराने के बाद भक्तों को हंस बनाया। आहा, हंस बनाया, काग से उन्होंने हंस बनाया। और जो हंस वृत्ति में जो व्यक्ति गुजरता है, धन्य उसके जीवन को। काग का स्वभाव अलग होता है, हंस का स्वभाव अलग होता है। हंस विवेकी होता है और काग विवेक शून्य होता है, उसमें कोई विवेक नहीं होता है, जो भी दे दो खा जाएगा। पर हंस ऐसा नहीं होता है, वो तो असलियत को ही ग्रहण करता है, सच्चाई को ही ग्रहण करता है, दूध को ही पान करता है
और पानी को छोड़ देता है, ऐसी हंस वृत्ति वाले सज्जनों को उन्होंने अमृत का प्याला पिलाया। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, 35 राष्ट्र के लोगों को, जो कि मूल भारतीय हैं, यहीं से गए हैं, विशेषकर गुजराती, विशेषकर सिंधी लोग, सिंधियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, मंदिर बनाए, और ऐसी जगह में मंदिर बनाए जहाँ पर कबीर साहब को कोई जानता, बोलो बोलो, कोई जानता नहीं था, वहाँ पर उन्हें जानकारी कराई। ऐसे परोपकारी महापुरुष, जो जाने ते ही देहु जनाई, जो जानना चाहता उसको जना दो, जानकारी के पथ में ला दो। यदि जान जाए तो जानत तुम ही हो, और जानने के बाद तो तुम ही हो कि दूसरे हो। जब तुम जान जाते हो तो तुम अपने आप को जान गए, तो नए आए कि पुराने ही हो। हम जब गुरु की सेवा से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के सत्संग से हम कुछ जानना प्रारंभ किए, तो जानने के बाद हम नए बने कि पुराने ही हैं। तुम्हारा चेतन नया कि पुराना, बोलो। जब जानोगे तो नई चीज जानोगे कि पुरानी को ही जानोगे। हम पुरानी वस्तु को नए ढंग से जाने, इसलिए हमको ऐसा लगा कि हम नए हैं। नए नहीं, पुराने हैं। उस पुराने को हम नई पद्धति से जान करके कृतकृत्य हो गए। कृतम कृत्यम प्राप्तम प्रापणीयम, हमें जो करना था वो हमने कर लिया, जो जानना था हमने, तो जानत तुम ही, जानने के बाद तुम हो, दूसरे नए नहीं हो। इसलिए सारे देश में भ्रमण किए, और ऐसी हालत में भ्रमण के बीमार भी हो गए। और साध्वी श्री सरला, जिसका जीवन सरल जीवन बापू के साथ रहे, और रह करके अपने सरल जीवन का परिचय दिया। साथ ही साथ आपके महंत साहब, ये रहते थे बेंगलोर में, ये महंत साहब के वहाँ, और वहाँ प्रवचन करते थे। बापू एक बार गए, कहते भाई तुम यहाँ प्रवचन करते हो, कभी इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, गुरुद्वारों में, वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। इनके प्रवचन, इनके विस्तार, इनके प्रचार को देख करके उन्होंने कहा ये व्यक्ति कदाचित हमारे आश्रम से जुड़ जाए तो अच्छा होगा कि नहीं? अच्छा नहीं होगा। ये व्यक्ति कदाचित पढ़ा लिखा, इंग्लिश का विद्वान, संस्कृत का विद्वान, मराठी का विद्वान और गुजराती का, अरे पता नहीं कौन कौन भाषाएं इनके अंदर, ऐसे रत्न संत को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा, इनसे कहा, क्या कहते हैं, मेरे साथ चलो और वहाँ पर कबीर आश्रम जामनगर का की सेवा स्वीकार करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। क्या कहते हैं, अरे तुमने कबीर कीर्ति का नमक खाया है। शू कहता है, कबीर कीर्ति का तुमने नमक खाया है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म है। जब उन्होंने नमक की बात करी तो बापू तुम्हारी आज्ञा हमारी सिरोधार्य करके ऐसे जुड़ गए। तो साहब विदेश में जाने के बाद एक ए रत्न पाए, दूसरा साध्वी श्री सरलाबेन, इन दोनों को पाने के बाद वो कृतकृत्य हुए। और आज जो सेवा हो रही है सरलाबेन के द्वारा, साहेब के द्वारा, ट्रस्टियों के द्वारा, यहाँ का ट्रस्ट बड़ा चुस्त है, बहुत बढ़िया है। एक पैसा इधर से उधर नहीं जाता है, बिल्कुल व्यवस्था एकदम कंप्लीट, किसी प्रकार की इधर उधर कोई वस्तु नहीं होती है, तभी परमार्थ होता है। जहाँ का अर्थतंत्र बढ़िया रहता है वहाँ की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी होती नहीं है। इसलिए अर्थतंत्र की व्यवस्था बढ़िया होनी बड़ी जरूरी है। यदि अर्थतंत्र ठीक नहीं होता, यदि अर्थ नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ये पंडाल बनता? बोलो, नहीं बनता। इसलिए अर्थतंत्र पर बराबर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, बापू का स्मरण करना माने परमात्मा का स्मरण करना, राम स्वरूप स्मृति। यदि स्मृति ही करनी है तो राम के स्वरूप की स्मृति करो। यदि मन से कुछ काम लेना है तो राम के स्वरूप का ही स्मरण करो।
ये राम नहीं, ये तो जामनगर के राम है। और वो राम कौन? जो सबके अंदर रमा हुआ है। और ये तो उधर ही से आए थे साहब, उत्तर प्रदेश से आए, और जहाँ पर राम आए, जहाँ पर कृष्ण आए, जहाँ पर कबीर साहब आए, और बगल में बुद्ध भगवान आए, महावीर आए, ऐसे देश से आकर के ये जामनगर की जनता को इन्होंने अमृत का प्याला पिलाया। तुम्हारे देश ने जन्म दिया इनको, बोलो, काठियावाड़ में। उपजहि अनत अनत छवि लही, व्यक्ति कहीं पैदा होता है और शोभा कहीं के बढ़ाता है। वहाँ जन्म लिया बालक, आपके यहाँ आया, गुरु की शरणागति में आया, विनम्र भाव से अपने जीवन को समर्पित किया और गुरु ने अपने हृदय से लगाया। आहा, राम को पाकर के किसको शांति नहीं होगी? शांति को भी राम की, बोलो, जरूरत थी। शांति को भी राम की जरूरत थी, इसलिए शांति राम को पाकर के महाशांति में डूब गए और उन्होंने अपने राम होने का सच्चा परिचय दिया। वही राम स्वरूप साहब जो कि इतना बड़ा उन्होंने काम किया, इसलिए स्मरण ही करता है तो राम का स्मरण करो। सुमरण करहु राम का, काल गहे है केश, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या। यदि सुमरण ही करना है तो राम का स्मरण करो। सुमरण करहु राम का, काल गहे है, आ तुम्हारा केस से ना आ काल जो है पकड़ा है, पता नहीं कब उचकाई दे, तुम मरी जाओ। ना जाने कब मारी है, पता नहीं चलता है कि कब शरीर छूट जाएगा। है किसी को पता? किसी को पता नहीं। बैठे बैठे कहीं हार्ट अटैक हो जाए तो राम नाम सब थी जाए। इसलिए ना जाने, कोई भी व्यक्ति मौत के संबंध में जानकारी करने में समर्थ नहीं है। कब हार्ट अटैक हो, कब कुछ हो जाए, शरीर हमारा छूट जाए। इसलिए साहब कहते हैं ना जाने कब मारी है क्या घर में हो चाहे प्रदेश में हो, मौत तो किसी समय भी हो सकती है। प्राण पिंड का वियोग कभी भी हो सकता है। तुम्हारे शरीर से ये जो प्राणवायु चलती है इसका तो कभी भी वियोग हो सकता है, और वियोग हुआ मौत खड़ी है। मौत कहीं लाना नहीं पड़ता है। इसलिए साहब हमको चिताते हैं, ना जाने, कोई पता नहीं है। योगी भी नहीं जानता है, रोगी भी नहीं जानता है, भोगी भी नहीं जानता है। राम स्वरूप साहब थे, स्नान करने के लिए गए और जाने के बाद अपने खाटला में आए, मच्छरदानी लगी हुई है और चांदना किया, हाथ में माला लिया, साहब का स्मरण किया। इधर चाय पड़ी हुई है पीने के लिए, चाय पीने के लिए पड़ी हुई है। बापू केम नहीं पीता, बापू केम नहीं पीता, बापू केम नहीं पीता। अरे बापू हो त्यारे पिए ना। बापू तो अपने आप में समाहित થઈ गया। इसलिए तुम सोचते हो कि बापू चाय पिए, बापू चाय पिए, बापू तो चला गया। इसलिए ना जाने कब किस समय किसका शरीर छूट जाएगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए शरीर छूटने के पहले जितना परमार्थ करना है, जितना अच्छा काम करना है, जितना परोपकार करना है, जितना समाज की सेवा करना है, कर लेना बड़ा जरूरी है। तो लहर तारा आप देखे होंगे, लहर तारा में भी एक महायोगी जिनका जीवन सारे समाज के लिए था, अब वो यहीं पर जामनगर में 8 तारीख को 8 जनवरी सन 1998 को उनका शरीर चला गया था। और वो उतना बड़ा स्मारक बना करके हम लोगों को दे करके गए। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जेठ पूर्णिमा में वहाँ दर्शन दें और आकर के देखें कितना काम वहाँ हुआ है, कितना बाकी है, और उस बाकी काम को पूरा भी करना तुम्हारा परम धर्म है। यदि थोड़ा थोड़ा भी पूरा करोगे तो महापुरुष का महासंकल्प वह पूर्ण हो जाएगा और कबीर साहब का स्मारक वह पूरा होगा। जहाँ से कि सद्धर्म का प्रचार होता है, काशी विद्वानों की नगरी है और उस विद्वानों की नगरी से जो प्रचार होगा वह यहाँ तक आया। सत्य नाम वहीं से आया कि यहाँ जामनगर में पैदा हुआ। बोलो, जामनगर में नहीं पैदा हुआ, सतनाम कबीर साहब के परम पवित्र मुखारविंद से निकला। और निकलने के बाद धर्मदास साहब ने पाया। अब उसी परंपरा में आते 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 बापू श्री पुरुषोत्तम
साहब के जीवन में आया, बापू श्री शांति साहब के जीवन में आया, और बापू श्री अब तुम कहो राम स्वरूप साहब के जीवन में आया, और उसमें आने के बाद तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा, सरलाबेन के जीवन के साथ जुड़ा, और जगदीश साहब के जीवन के साथ जुड़ा, और तुम्हारे मारे सबके जीवन के साथ। इसलिए यदि नाम का ही स्मरण करना है तो सत्य नाम का स्मरण करना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा न कहता हुआ मैं यही प्रार्थना करूँगा कि साहब के जीवन के साथ आपका जीवन रहे, साहब के संकल्प के साथ आपका संकल्प रहे। छोटा बच्चा हो, नाना बच्चा हो, नानी बच्ची हो, डोसा हो, डोसी हो, कोई पण हो, साहब के जीवन के साथ हमारा जीवन यदि जुड़ेगा, उनके आदर्श पर हम चलेंगे, उनके मार्गदर्शन पर हम चलेंगे तो हमारे आश्रम की प्रगति होगी। उनके आदर्श पर हम चलेंगे तो हम अधिक से अधिक सेवा कर सकेंगे। इसलिए सत्य नाम का सुमरण करना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर बोलो। जाके हृदय जिस किसी के हृदय में, ये नहीं कि कोई जिस किसी, चाहे ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो जामनगर वाला हो, चाहे काशी वाला हो, किसी के भी हो, चाहे बेंगलोर वाला हो, इंग्लैंड वाला हो, लंदन वाला हो, जाके हृदय जिस किसी के व्यक्ति के हृदय में यदि सत्य का प्रकाश हो गया, सत्य का साक्षात्कार हो गया, सत्य से जुड़ गया, तो जाके हृदय सांच है ताके हृदय स्वयं परमात्मा निवास करता है। और तुम तो परमात्मा रूप हो, तुम्हारे में और परमात्मा में कोई अंतर कि है। अज्ञान अवस्था में हम जीव हैं और ज्ञान अवस्था में हम शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य हैं। हमारे शुद्ध चैतन्यता में किसी प्रकार का फेरफार नहीं है। इसलिए सत्य नाम तो सबसे ऊंचा है। सत्य वह ऊंचा है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए सत्य नाम का सुमरण करते रहना हमारा परम कर्तव्य है। हमारा मन जब भजन में जाए तो हमारा मन सत्य में विश्राम करे, सत्य नाम में। सो जाएं तो सत्य नाम में विश्राम करे, और जागें तो सत्य नाम को लेकर के ही जागें, तो तुम्हारी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया रहेगी। विशेष न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ, सत्य नाम बोल तेमा कल्याण छे। તેમાં કલ્યાણ છે। સત્ય નામ બોલ 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 તેમાં કલ્યાણ છે। તેમાં કલ્યાણ છે, તેમાં ઉદ્ધાર છે। તેમાં કલ્યાણ છે, તેમાં ઉદ્ધાર છે। તેમાં કલ્યાણ છે, તેમાં ઉદ્ધાર છે। જેમાં કલ્યાણ છે તેમાં ઉદ્ધાર છે। સત્ય નામ બોલ તેમાં કલ્યાણ છે। સત્ય નામ બોલ તેમાં કલ્યાણ છે। માતા પિતાને હાથ જોડ તેમાં કલ્યાણ છે। માતા પિતાને હાથ જોડ તેમાં કલ્યાણ છે। સત્ય નામ બોલ તેમાં કલ્યાણ છે। સત્ય નામ બોલ તેમાં કલ્યાણ છે। ચેતન સત્ય નામ બોલ તેમાં કલ્યાણ છે। સત્ય નામ બોલ તેમાં કલ્યાણ છે। માયા છે જળ અને ચેતન છે આત્મા। માયા છે ચેતન છે આત્મા। માયા છે જળ અને ચેતન છે આત્મા। માયા છે જડ અને ચેતન છે આત્મા। ચેતન છે શુદ્ધ રૂપ પૂર્ણ પરમાત્મા। ચેતન છે શુદ્ધ રૂપ પૂર્ણ પરમાત્મા।
પરમાત્મા ચેતન છે શુદ્ધ રૂપ પૂર્ણ પરમાત્મા ચેતન છે શુદ્ધ રૂપ પૂર્ણ પરમાત્મા માયા છે ચઢે ન ઢોલ તેમાં કલ્યાણ છે માયા